Hello everyone and welcome back to my playlist of head and neck anatomy. Today we are going to start parotid region, which is chapter number 5 from BD4 volume number 3. Or this region, the parotid region, by and large we will be talking about this gland which is the parotid gland. Okay, इस region का main component यही है और इस parotid gland की बड़ी importance है clinically because यहाँ पे infection, abscess, tumors ये सारी pathologies भी होती हैं and इसमें से there are so many important structures which are actually traveling through the parotid gland basically. For example, facial nerve है, arteries हैं, veins हैं, so important topic है. Do watch the video केयरफुली. स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल भी लगता है, उसकी वजह ये है क्योंकि अभी इस चैप्टर में आगे जब बात करेंगे देन यू विल सी कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो बिकॉज इट्स अ 3D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल होती है बॉर्डर्स वगैरह समझने में, सरफेसेस समझने में. सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. पैरोटिड रीजन कंटेन्स द लार्जेस्ट serous salivary gland, which is the parotid gland and queen of the face. And what is queen of the face referred to as facial nerve. So parotid region जो है इसमें ये दो important structures हैं, एक तो parotid gland और दूसरा उसमें से गुजरती हुई facial nerve. Okay, parotid gland contains vertically disposed blood vessels and horizontally situated facial nerve. इसका basically purpose ये है, अभी आगे diagrams में हम देखेंगे. For example ये diagram. So if you see here, this is the parotid gland here in the middle. और इसमें से यूं horizontally तो ये सारी nerves गुजर रही हैं, लेकिन vertically you see there are blood vessels, arteries and veins. So this is what they are talking about. कि there are vertical arrangement of blood vessels and horizontal arrangement of facial nerve within the substance of the parotid gland. Now parotid gland gets affected by viruses. Mumps एक बहुत ही common infection है which can extend the territory of its attack up to gonads as well, and mumps का testicular inflammation के साथ भी link है. When we study mumps we will cover this. One must be careful of the branches of the facial nerve while incising the parotid abscess by giving. Now this is important. मैंने आपको start में ही ये बात बताई कि जो parotid gland है उसकी clinical relevance एक तो उसकी pathologies हैं और दूसरा उसमें से जो structures गुजर रहे हैं. So the facial nerve passes through the parotid gland और उसकी जो सारी branches हैं, पांचों branches वो इसी सब्सटेंस में है. देयरफॉर व्हेनेवर देयर इज सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू ड्रेन द एब्सेस फॉर एग्जांपल फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड, इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. दैट्स व्हाई बड़ा एम्फेसिस होता है, अलग से इस पे एक पूरा चैप्टर है पैरोटिड रीजन पे. ओके, नाउ इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट सैलिवरी ग्लैंड्स देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लार्ज सैलिवरी ग्लैंड्स. पहले का नाम है पैरोटिड, राइट साइड पे भी होता है, लेफ्ट साइड पे भी. देन सबमैंडिबुलर, इट्स आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पेयर, एंड देन सबलिंगुअल. तो ये 3 पेयर्ड ग्लैंड्स हैं विच आर द लार्ज ग्लैंड्स. इसके अलावा छोटे मोटे और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो पूरी टंग पे फैले हुए होते हैं, पैलेट पे होते हैं, हार्ड पैलेट पे, चीक्स पे और लिप्स पे. These glands produce a very important chemical which is known as saliva. It keeps the oral cavity, number 1, moist, and number 2, it helps in chewing and swallowing. Saliva also contains enzymes that help in the process of digestion. So general ये बात है salivary gland के बारे में, और जो इनमें सबसे बड़ा salivary gland है वो parotid gland है जिसके बारे में आज हमको स्टडी करना है. This is the topic that we have to basically cover today. Okay, now let's talk about the rest of the chapter is particularly designated to parotid gland. Reason उसका ये है क्योंकि parotid region का main component है ही parotid gland. Okay, now parotid gland is the largest of the salivary glands. जो 3 salivary glands बड़े अभी मैंने आपको बताया, parotid, submandibular और sublingual, इन तीनों में सबसे बड़ा salivary gland है parotid gland. Okay, it weighs about 25 grams in total, इतना इसका weight होता है. It is situated below the external acoustic meatus between the ramus of the mandible and the sternocleidomastoid. So इसकी location ज़रा देख लें. Location of the parotid gland, if you look here, this red bit here is the parotid gland. You see here is the external auditory meatus. इसके नीचे से ये शुरू हो जाता है and मैंडिबल के ऊपर और एक दो मसल्स हैं जिनको ये ओवरलैप करता है. पहला मसल जो एंटीरियर साइड पे यहाँ पे नजर आ रहा है मेसेटर, और पोस्टीरियर साइड पे ये मसल नजर आ रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. सो इट इज ओवरहैंगिंग, द ग्लैंड इज बेसिकली ओवरहैंगिंग द मैंडिबल, द मसेटर मसल एंटीरियरली एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पोस्टीरियरली. Okay, the gland overlap these structures. कौन से structure?
mandible, masseter, as well as sternocleidomastoid. Anteriorly, the gland also overlaps the masseter muscle. ये बात हमने कर ली. Now, skin over the gland is supplied by great auricular nerve, जिसकी root value है cervical level 2 and cervical level 3. So that's an important thing for you to remember. Okay, so location समझ में आ गई सबके. It is below the external acoustic meatus और ये phase बना हुआ है, and between the ramus and masseter anteriorly and sternocleidomastoid posteriorly. Okay, now let's talk about कि जो capsule है, obviously this is a gland and it is surrounded by a special covering and thickening of deep fascia which forms actually the capsule of parotid gland. और ये जो capsule है, it is in the form of the investing layer of the deep fascia which forms the capsule. So if you look here, for example, this in the middle, this is the parotid gland, and you can see that the capsule or the deep fascia or the investing layer is kind of completely covering the gland from both sides or all around. It is actually the full covering of the gland, and this is why we call it the capsule of the gland. It is supplied by great auricular nerve. The capsule is also supplied by great auricular nerve. Root value जो ऊपर थी exactly वही C2 and C3. That is the root value to supply the capsule. The fascia splits to enclose the gland. You can see here, this is the gland here, and the fascia is splitting to enclose it from almost every direction. Okay, the superficial lamina, so obviously when it splits, it forms a superficial lamina, for example this one, and then it forms a deep lamina. So there is a superficial lamina as well as there is a deep lamina. A portion of the deep lamina extending between the styloid process and the mandible is in the form of a thickening which is called stylomandibular ligament. Okay, so जो stylomandibular ligament है, it is actually pierced by the external carotid artery. So here you see the stylomandibular ligament and pierced by the external carotid artery, okay, which separates the parotid gland from the submandibular salivary gland. The ligament, इस ligament की बात हो रही है, stylomandibular ligament की, it is actually pierced by the external carotid vessel. Okay, clinical कुछ बातें यहाँ हैं, कुछ अभी आगे भी आएंगी. Parotid swellings are very painful due to unyielding nature of the parotid fascia. Because the parotid fascia is very tightly bound to the parotid gland capsule के form में, and wherever in the body there is a tight space, और उस tight space के contents में अगर inflammation होती है, it is very very painful. Okay, mumps is an infectious disease of the salivary gland, usually the parotid gland. It's a viral disorder caused by specific virus. Okay, viral parotitis or mumps, either you call it viral infection or viral parotitis, or it is also called mumps in general terms. Characteristically does not suppurate, which means it does not make abscess. Its complications are orchitis, inflammation of testicles, and pancreatitis, inflammation of pancreas. Now this is the boring bit for many of the students. The students get worried about the external features. Relations are actually too much of information. If you want to remember, you can, but I would like to spend some time on the external features. और मैं इसमें कोशिश ये करता हूँ कि एक 3D image भी आपको दिखा दूँ, ताकि आपको एक 3-dimensional orientation हो कि what are the different surfaces and what are the different borders of the parotid gland. So let us first discuss कि borders कौन कौन से हैं. ठीक है, there are 3 borders in the parotid gland, और वो 3 borders कहलाते हैं anterior border, posterior border and medial border. The medial border is also known as pharyngeal border. So अगर हम इसी diagram में देखें, so this is the face, all of you know, and that part of the face is obviously the anterior part and this part is the posterior part, है ना. इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. तो बिल्कुल parotid gland का भी जो ये वाला border होगा, this border will be the anterior border, और ये जो पीछे border होगा, this will be the posterior border. So इसमें कोई समझने में मुश्किल काम नहीं है. अब ये anterior और posterior border के बीच में ये जो surface है, this surface is called the superficial surface. बहरहाल अभी मैं surfaces पे आता हूँ. इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि borders कितने होते हैं total. There are 3 borders. 3 borders में से पहला border क्या है? Anterior border. दूसरा बॉर्डर कौन सा है? पोस्टीरियर बॉर्डर. और फिर तीसरा बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इसी डायग्राम पे बात समझ में आ रही है कि जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर साइड पे होगा, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो पोस्टीरियर साइड पे होगा. अच्छा, मीडियल बॉर्डर किस साइड पे होगा? वो भी मिडिल साइड पे होगा ना. यहाँ ये जो साइड आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली लेटरल साइड है. क्यों? क्योंकि फेस का लेटरल साइड आप देख रहे हैं. मीडियल का मतलब होगा इसके अंदर डीप डाउन. यानी अगर कोई एक 3D टाइप की डायग्राम हम देखना शुरू करें, दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, सो दिस हियर इफ यू सी, दिस पिंक पिट इज द पैरोटिड ग्लैंड. ये पैरोटिड ग्लैंड है. ठीक है, यहाँ ये मैसेटर मसल है जिसके ऊपर ये पैरोटिड ग्लैंड पड़ा है. यहाँ पीछे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होगा,
which has been removed. But anyways, look at the pink thing here. अब इस pink parotid gland में ये जो आगे वाला बॉर्डर जिसमें इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. अगर मीडियल बॉर्डर देखना है तो मुझे इसको यूं घुमाना पड़ेगा एंड देयर आई कैन सी द मीडियल बॉर्डर. ओके, सो मीडियल बॉर्डर इज टुवर्ड्स द इनसाइड, टुवर्ड्स द मीडियल साइड. सो 3 बॉर्डर्स हैं. अब इन 3 बॉर्डर्स की वजह से देयर आर मल्टीपल सर्फेसेस. तो पहली जो सरफेस है उसका नाम है सुपीरियर सरफेस एंड एज द नेम इंडिकेट्स इट विल बी ऑन द सुपीरियर साइड. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द डायग्राम अगेन हियर, we will have a surface here on the superior aspect. This will be known as the superior surface. Then the next surface is this surface, which is present over the towards the lateral side of the face, जो आपको देखने में यहाँ से directly नजर आ रही है, ये वाली surface. This is all known as superficial surface. Okay, so superior surface towards the upper edge of the gland, and then the superficial surface, which is what is visible to you. Okay, अगर हम इसको again 3D diagram पे देखने की कोशिश करें, so that surface which is visible at the moment, this is the superficial surface. So मैं ये भी कह सकता हूँ कि superficial surface is between anterior border and posterior border. So anterior और posterior border के बीच में superficial surface है. ऊपर यहाँ पर that part, this is the superior surface. This is the superficial surface. This is the superior surface. हो गई बात समझ में आ गई? Superior surface and superficial surface. Now let us talk about के एंटेरोमीडियल और पोस्टेरोमीडियल. अब एक बात तो ये तय हो गई कि ये जो दोनों सरफेसेस हैं एंटेरोमीडियल और पोस्टेरोमीडियल, ये मीडियल साइड पर हैं. मीडियल साइड का मतलब ये कि वो इस एंगल पर हमको नजर नहीं आएंगी. एंटेरोमीडियल जो है वो एंटीरियर साइड पे होगी और मीडियल साइड पे तो थोड़ा सा अगर मैं इसको घुमाऊं तो दैट इमेज रिफ्लेक्ट्स के एंटेरोमीडियल एंगल किस तरफ होगा. और पोस्टेरोमीडियल, you know that this is the posterior border, so posterior medial will be, अगर थोड़ा सा यूं घुमा दें, so that area is the posterior medial area. Okay, so 4 surfaces हैं और 3 borders हैं. Let me repeat one more time. This is the anterior border because this is the anterior side of the face. So anterior border of the parotid gland. This is the posterior border of the parotid gland. This is the medial border of the parotid gland. Now between the anterior and posterior border is the superficial surface. Towards the upper part is the superior surface. Towards the anterior and medial part is the anteromedial, and towards the posterior and medial part is the posteromedial surface. तो ये देखें 3D में काफ़ी मामला आसान हो गया, वरना स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी परेशान होते हैं कि सरफेसेस समझ में नहीं आ रही किधर है. इस 2D डायग्राम में it is not very clear कि where is the medial surface, but obviously the 3D diagram explains it very well. So I hope कि ये आपको जो borders और surfaces वाली स्टोरी है ये समझ में आ गई. Okay, 3 borders and 4 surfaces. ये बड़ा बोरिंग चीज़ है, स्टूडेंट्स को अक्सर समझ में नहीं आती, बट आई एम होपिंग कि दिस इज़ नाउ क्लियर. ओके, अच्छा, इसी से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स का. रिलेशनशिप्स बहुत बाज़ों का डिटेल में लिखे होते हैं और वो सारी की सारी डिटेल आपको याद रखना ज़रूरी भी नहीं होता, बट एनीवेज लेट अस ट्राई टू कैप्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, मैं मेंशन करता जाऊंगा क्या चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ ऐसी है जिसको आप एक्चुअली स्किप कर सकते हो. सो apex overlaps the posterior belly of the digastric and the adjoining part of the carotid triangle. So apex of the gland is basically towards the base. So if this is the parotid gland, मैं इसको रब कर दूं ताकि क्लियर हो जाए. So if this is the parotid gland, you see towards the base is this area of the parotid gland which is called apex. Okay, and it is here in the carotid triangle. जब ये neck में हम पढ़ेंगे carotid triangle तब आपकी बात समझ में आएगी, but apex इस वक्त इतना समझ लो कि it is towards the lower side of the parotid gland. Okay. Now, the cervical branch of the facial nerve and the 2 divisions of the retromandibular vein emerge near the apex. तो ये जो apex है इसकी importance ये है कि 2 division facial nerve की, ये दोनों divisions और blood vessels इस area पर retromandibular vein, this is the area important for you to remember कि इनका relation apex के साथ है. Okay, now moving forward, surfaces के कुछ relations ऐसे हैं जो बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे. आइए देखते हैं. पहले तो ये बताओ surfaces कितनी थी टोटल. There were 4 surfaces. जो ऊपर की तरफ थी यानी कि this यहाँ एरिया, यहाँ जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने क्या नाम दिया था? दैट वाज नोन एज द सुपीरियर सरफेस. सुपीरियर सरफेस को बेस भी कहते हैं. सो अगर हम दोबारा इस डायग्राम को देखें, लोअर पार्ट पे मैंने आपको बताया था पैरोटिड ग्लैंड के एपेक्स मौजूद है. सो दिस इज द
एपेक्स एरिया, और अपर एरिया जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस एरिया. सो द बेस इज प्रेजेंट एट द सुपीरियर पार्ट एंड एपेक्स इज प्रेजेंट एट द इंफीरियर पार्ट. ओके, ये ओरिएंटेशन क्लियर होनी चाहिए. और जो सुपीरियर पार्ट है जिसको बेस कहा जा सकता है इज रिलेटेड टू अ फ्यू स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीयरस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, superficial temporal vessels, auriculotemporal nerve. So if you look at this diagram, it tells you the whole story. So for example, this is the external auditory meatus. ये superior surface के नज़दीक है या नहीं है? Superficial temporal vessels, ये superior surface के करीब है, relationship में है. Auriculotemporal nerve, ये superior surface के link में है. So you see all these structures directly in relation to the superior surface. तो अगर आप डायग्राम को देखते हैं और फिर ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाती है. अब बात करते हैं सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं. सुपरफिशियल सरफेस थी कौन सी? सुपरफिशियल सरफेस ये सरफेस थी जो हमको इस वक्त यहाँ नज़र आ रही है. और सुपरफिशियल सरफेस की जो डायरेक्ट रिलेशन है उसके ऊपर स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, पैरोटिड फेशिया है जो कि डीप फेशिया की थिकनिंग है, एंड सम पैरोटिड लिम्फ नोड. सो बेसिकली सुपरफिशियल सरफेस जो है इस पूरे पैरोटिड ग्लैंड की, इसके ऊपर स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, डीप फेशिया है. जनरल ऑर्गेनाइजेशन पूरी बॉडी की इसी तरह से होती है. ओके, next surface number 3 is the anteromedial surface, and then there is a posteromedial surface. Okay, अब देखते हैं कि इनके relationships की sense बनाने की कोशिश करते हैं. Anteromedial जो surface है, it is grooved by the posterior border of the ramus of mandible. It is related to masseter, temporomandibular joint का lateral part, ramus of the mandible, medial thyroid, and emerging branches of the facial nerve. So this should all actually make sense to you. So if you are looking at this diagram, for example, let me take the eraser. So if we are looking at this diagram, you see this जो सामने नज़र आ रही है surface is the superficial surface. ये anterior part है और medial side पे this will be the anteromedial part, है ना. इस anteromedial part पे एक तो ramus of the mandible है, ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. Then it is also in connection with the masseter muscle. So अगर 3D diagram पे दोबारा हम चलते हैं, so you look here इस डायग्राम में, this is the 3D diagram. Let us explore this one more time. ये जो सरफेस नजर आ रही है this is the superficial surface. एंटेरोमीडियल ये वाला पार्ट है और इस एंटेरोमीडियल पार्ट पे ये मसेटर मसल लिंक्ड है और इस मसेटर मसल के पीछे ज़ाहिर रैमस ऑफ मैंडिबल होगा और यहाँ पे ये ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व भी निकल रही हैं. सो एंटेरोमीडियल रिलेशनशिप्स आर वेरी क्लियर. ओके, नाउ लेट्स सी कि पोस्टीरोमीडियल रिलेशनशिप्स क्या हैं पैरोटिड ग्लैंड के, या जो पोस्टीरोमीडियल सरफेस है उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं. उसके रिलेशनशिप्स हैं मेस्टोइड process, styloid process, external carotid artery. That is again easy to understand because if you look again at the 3D diagram here, this is what is the posteromedial surface. You see these big arteries here and they are in the relationship with the posteromedial surface. So basically message मेरा ये है कि अगर इस बोरिंग पैराग्राफ्स को आप डायग्राम के साथ मिक्स एंड मैच करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुपीरियर सरफेस के रिलेशनशिप्स क्या हैं, जो एपेक्स है उसके रिलेशनशिप्स क्या हैं, सुपरफिशियल सरफेस की रिलेशनशिप्स क्या हैं, एंटेरोमीडियल पोस्टेरोमीडियल रिलेशनशिप्स क्या हैं. ओके, सो ऑलवेज रीड द बोरिंग टेक्स्ट विद इंटरेस्टिंग डायग्राम्स. राइट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सम बॉर्डर्स. जो एंटीरियर बॉर्डर है ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इट सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द एंटेरोमीडियल सरफेस. नाउ ट्राई टू इमेजिन दिस, गोइंग बैक टू दिस डायग्राम अगेन. वेयर इज द एंटीरियर बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर इज दिस वन, दिस बिग, जिस पे मेरा इस वक्त कर्सर मूव कर रहा है, दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर. एंटीरियर बॉर्डर के इधर ये कौन सी सरफेस है? सुपरफिशियल. एंटीरियर बॉर्डर के उधर यानी इधर कौन सी सरफेस है? एंटेरोमीडियल. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इट सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द एंटेरोमीडियल सरफेस. अच्छा, अब अगली बात सुनिए, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, सो अगर इसी एंगल पे रखते हैं एंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर. एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस है? सुपरफिशियल. अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में कैन आई से दिस कि द पोस्टीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरोमीडियल सरफेस. सो ये बड़ी मुश्किल लगते हैं स्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअली बड़े आसान है अगर आप सुन रहे हैं मेरी वीडियो को गौर से और समझ रहे हैं बात को.
ठीक है। सो एंटीरियर बॉर्डर की ये कहानी हो गई। देन द पोस्टीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, ये बात हो गई हमारी। अच्छा, जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल एज या मीडियल बॉर्डर, इट सेपरेट्स द एंटीरोमीडियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरोमीडियल सरफेस। सो दैट्स अगेन द इमेजिनेशन, यूज योर इमेजिनेशन पावर। वी हैव एंटीरियर बॉर्डर, वी हैव पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड देन वी हैव अ मीडियल बॉर्डर। सो जो मीडियल बॉर्डर है उसके इधर पोस्टीरोमीडियल सरफेस होगी, मीडियल बॉर्डर के उधर एंटीरोमीडियल सरफेस होगी। सो मीडियल बॉर्डर सेपरेट्स एंटीरोमीडियल एंड पोस्टीरोमीडियल बॉर्डर। सो बिलीव मी, दिस इज अ वेरी बोरिंग स्टफ, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं और इस वीडियो को गौर से सुन रहे हैं और ये 3D डायग्राम मेरे साथ साथ देख रहे हैं, देन दिस शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि अगर ये सिर्फ 2D डायग्राम आप देखोगे ना, इस पे आपको समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है, सुपरफिशियल सरफेस क्या है। सो दैट डायग्राम इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग द पैरोटिड ग्लैंड, बिकॉज इसकी 2D एनाटमी है नहीं, इसकी पोस्टेरोमीडियल एंटेरोमीडियल थोड़ी सी टफ एनाटमी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये 3D मॉडल इनकॉर्पोरेट किया है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहां तक बात समझ में आ गई कि पैरोटिड ग्लैंड की हमने स्टोरी देखो शुरू करी, बात स्टार्ट की कि ये है क्या, इंट्रोडक्शन की बात की, डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स की बात की, कैप्सूल की बात की, फिर इसके डिफरेंट बॉर्डर्स और सरफेसेस की बात की। अब मुझे ये डिस्कस करना है आपसे कि पैरोटिड ग्लैंड के कौन से कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर से गुजर रहे हैं या कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टरी की अगर बात करें, सो द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। अब आपको पता है कि व्हाट इज द पोस्टेरोमीडियल सरफेस, एंड हियर इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड, इट इज एंटरिंग द पोस्टेरोमीडियल सरफेस। द मैक्सिलरी आर्टरी लीव्स द ग्लैंड थ्रू द एंटेरोमीडियल सरफेस। फिर इसमें से मैक्सिलरी आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच, द मैक्सिलरी आर्टरी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। देन वी हैव द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी गिविंग राइज टू ट्रांसवर्स facial. So this is superficial temporal continuation from the external carotid, and it is giving a horizontal branch which is transverse facial. So ये तमाम जो blood vessels हैं ये directly consider होती हैं as a substance of the parotid gland. Then there are important veins. The retromandibular vein is formed within the parotid gland by the union of superficial temporal. So if you look at this diagram here they are actually showing how the retromandibular vein, which is this one, it is being formed within the parotid gland by superficial temporal. Here is the superficial temporal and then the transverse facial. So superficial temporal and transverse facial मिलकर बनाती है retromandibular। ठीक है, अब ये भी पूरा ग्लैंड में से चूंकि गुजर रही है तो ये आपको पता होना चाहिए। इन द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड द वेन डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स व्हिच इमर्ज क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द ग्लैंड। सो इफ यू गोइंग बैक टू दिस डायग्राम, ये है रिट्रोमैंडिबुलर, लोअर पार्ट ऑफ द ग्लैंड में इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन, 2 divisions here, okay, and this is happening towards the apex of the gland. अब आपको ये पता है कि this area is the apex of the gland, this is the base of the gland, right? Now if we talk about the facial nerve, तो पूरी की पूरी हमने पहले भी एक दफ़ा बात डिस्कस की है कि द फेशियल नर्व एंटर्स द ग्लैंड एंड एक्चुअली डिवाइड्स इनटू इट्स 5 ब्रांचेस। ओके, तो फेशियल नर्व इज द नर्व ऑफ द सेकंड ब्रैंकियल आर्च। द फेशियल नर्व लीव्स द स्कल बाय पासिंग थ्रू द स्टेलोमास्टोइड फोरामेन इन इट्स एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। ये सब डिटेल्स जब क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे ना तब हम ये बात करेंगे भी, ठीक है। इस वक्त सिर्फ इतना याद रख लें कि जो फेशियल नर्व है वो इस ग्लैंड में एंटर होती है और अपनी 5 डिविजन्स में डिवाइड होती है। ओके, नाउ द नर्व एंटर्स द पोस्टीरोमीडियल सरफेस basically of the parotid gland, runs forward through the gland, crossing the retromandibular vein and external carotid artery behind the neck of the mandible. It divides into 2 branches, the temporofacial and the cervicofacial. Now the temporofacial further gives temporal and zygomeric branches, and the cervicofacial gives buccal, marginal and cervical branches. So total 5 branches हैं जो 2 branches में से निकलती हैं। These 5 terminal branches emerge along the anterior border and the apex of the parotid gland. So ये रही facial nerve enter होते हुए from the posteromedial surface, neck of the mandible में ये पहले 2 branches में divide होती है और फिर ultimate 5 branches बनती हैं जो anterior border से emerge करती हैं और face को supply करती हैं। So that's kind of the basic story, okay? Now the branches, ये this is I'm not going to cover this at the moment because facial nerve पर हम पूरा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाने लगे हैं, क्योंकि जो cranial nerves हैं उनकी अलग से वीडियोस तो बनती हैं because they're very very important, okay? तो यहाँ पे ये रूट्स और ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। Let us now talk about, and Bell's palsy मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। इट इज़ दी
पैरालिसिस बेसिकली ऑफ द फेशियल नर्व. सुप्रान्यूक्लियर पैरालिसिस है, इंफ्रान्यूक्लियर पैरालिसिस है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, तो मेरी वीडियो ये वाली देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ. Now, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए कि पेटेज फेशियोवेनस प्लेन क्या है. बेसिकली होता ये है कि लेट मी फाइंड द डायग्राम फॉर यू. सो वेयर इज इट? देयर वाज अ डायग्राम जिसमें पैरोटिड ग्लैंड के ये दिस वन. सो पैरोटिड ग्लैंड क्या सुपरफिशियल पार्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड है. देन देयर इज अ स्मॉल डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, बीच में इस्थमस है. और इस इस्थमस की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अराउंड फेशियल नर्व की जो 2 ब्रांचेज हैं वो इसको काइंड ऑफ सराउंड करती हैं. सो द फेशियल नर्व प्लेन इज बेसिकली डिवाइडिंग द पैरोटिड ग्लैंड इनटू सुपरफिशियल, बिग सुपरफिशियल एंड स्मॉल डीप पार्ट. इस प्लेन को हम ये एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, पेटेज फेशियोवेनस प्लेन. ओके राइट. ये इतना हाई स्टफ नहीं है, मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इज बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस एंड द वेनस ड्रेनेज इनटू एक्सटर्नल जुगुलर एज वेल एज इंटरनल जुगुलर. ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. नाउ द नर्व सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड की पैरासिम्पैथेटिक भी है और सिम्पैथेटिक भी है. जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो बेसिकली सीक्रेटो मोटर हैं, यानी इंक्रीज द सिक्रेशंस. दे रीच द ग्लैंड थ्रू द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. द प्री गैंग्लियोनिक, अब ज़ाहिर पैरासिम्पैथेटिक है तो उसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिस्टम होगा, फिर गैंग्लियन में साइनैप्स होगा, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिस्टम होगा. सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बिगिन इन द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. दे पास थ्रू द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, its tympanic branch, the tympanic plexus, and then the lesser petrosal nerve, and then relay in the otic ganglion. So जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये पूरी उसकी जर्नी है और वो अल्टीमेटली कहाँ के रिले करता है? ओटिक गैंग्लियन में. यहाँ से फिर जनरेट होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स विच पास थ्रू द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व टू रीच द ग्लैंड. तो और ये ना मैंने देखा है कि एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछते भी हैं कि भाई पैरोटिड ग्लैंड तक जो पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव आ रही है उसकी ज़रा पूरी जर्नी बताएं. तो वो मामला शुरू होता है इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से, नाइट नर्व विच इज ग्लोसोफेरिंजियल, टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक प्लेसेस, लेसर पेट्रोसल और ओटिक गैंग्लियन. यहाँ तक जो मामला है इट इज समथिंग लाइक दिस. अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, सो हेयर वी हैव अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और फिर अब ये आ गया ओटिक गैंग्लियन. ओटिक गैंग्लियन से फिर मर्ज होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो अल्टीमेटली पैरोटिड ग्लैंड तक आएगा. सो जो रिले है, जो सिनेप्सिस हो रहा है बिटवीन द प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, इट्स हैपनिंग इन द ओटिक गैंग्लियन. ठीक है. और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कौन सी नर्व में ट्रैवल करते हैं? ऑरिकोटेम्पोरल. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन सी नर्व में ट्रैवल करते हैं? ग्लोसोफेरिंजियल. ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है. ओके. नाउ जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं. दे आर वैजोमोटर एंड आर ड्राइव फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. दीज फाइबर्स स्टार्ट फ्रॉम द लेटरल हॉर्न ऑफ द T1 सेगमेंट. T1 से सप्लाई आ रही है. दीज साइनेप्सेस इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. Post ganglionic fibers travel along the branches of the external carotid. So this is the route for sympathetic system. के T1 से स्टार्ट होगा, lateral horn of the T1 of the spinal cord. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के रिले करेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में. यहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आएंगे वाया दीज ब्लड वेसल्स. तो सिंपैथेटिक का भी और पैरासिम्पैथेटिक का भी रूट पता होना चाहिए कि फाइबर्स किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं. Now the sensory nerves to the gland come from the auriculotemporal. Sensory जो feeling वाली सारी nerves हैं, they are from the auriculotemporal nerve. But the parotid fascia is innervated by the sensory fibers of the great auricular. ये थोड़ी देर पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो डीप फेशिया यानी कि जो कैप्सूल है पैरोटिड ग्लैंड का, it is innervated by C2C3 great auricular nerve. ओके. लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरह से होता है? आर्टिकल सप्लाई पढ़ ली, वेनस ड्रेनेज पढ़ ली, नर्व सप्लाई देख ली. अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की. Now lymph from the parotid gland first drains into a group of nodes which are termed as parotid nodes. और फिर parotid node से from there to the upper deep cervical. So parotid से deep cervical. अब जो parotid lymph nodes हैं they lie partly in the superficial fascia and partly deep to the deep fascia over the parotid gland. Over the parotid, उसके ऊपर होते हैं. And
इस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड ड्रेन नहीं करता, इसमें टेम्पल से ड्रेनेज है, साइड ऑफ स्कैल्प से है, ऑरिकल का लेटरल पार्ट है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियारस, मिडल ईयर, पैरोटिड ग्लैंड इटसेल्फ एंड अपर। सो जो पैरोटिड लिम्फ नोड्स हैं उसमें पैरोटिड ग्लैंड तो सिर्फ एक पार्ट है जो ड्रेन करता है, हेड और नेक के और रीजन्स भी यहाँ पे ड्रेन करते हैं। ओके, इवन द आईलिड्स इन द ऑर्बिट। तो ये सारी बात हो गई जनाब लिम्फेटिक ड्रेनेज की। अब जो आखिरी बिट रह गया है वो इम्पॉर्टेंट है, और अब हम बात करते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं वो किस डक्ट के जरिए निकलती हैं। उस डक्ट को हम नाम देते हैं पैरोटिड डक्ट। सो जो पैरोटिड डक्ट है दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेंसन्स डक्ट, और इसका काम ऑब्वियसली ये है कि पैरोटिड ग्लैंड में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसको ओरल कैविटी तक लाके ड्रेन कर दे। ओके, सो इट इज अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर अबाउट 5 centimeters long. It's pretty long. It emerges from the middle of the anterior border of the gland. It runs forwards and slightly downwards. इसका oblique root होता है and it opens in the oral cavity. So let us look grossly कि ये parotid duct होती किधर है. So in any diagram that you pick up, there is a parotid gland and then obviously there is a parotid duct which is coming out from the anterior border. So that's the anterior border, और ये middle of the anterior border से parotid duct emerge करती है. So that's kind of the location of parotid duct. अब ये अपने पूरे कोर्स में ज़ाहिर है जब गुजर रही है तो इसके कुछ सुपीरियर रिलेशंस हैं, कुछ इन्फीरियर रिलेशंस हैं, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल सुपीरियरली इसके ऊपर क्या क्या होता है, देयर आर ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स और एसेसरी पैरोटिड. तो अगर मैं इफ आई टेक बैक यू टू दिस डायग्राम, ओके दिस वन, सो हियर दिस इज द पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस इज द पैरोटिड डक्ट. इसके ऊपर आप देखें सुपीरियर रिलेशन में दिस इज द एसेसरी पैरोटिड एंड देन देयर इज ट्रांसवर्स फेशियल artery and then there are some nerves. So these are all the things which are in the superior relation of the parotid duct. इसी तरह inferior relation में कुछ muscles हैं, ramus of the mandible. So जब duct गुजर रही है तो उसके superiorly कुछ चीज़ें उसके relation में हैं and then there are some stuff inferiorly. buccal fat पैर है, buccopharyngeal fascia है, buccinate muscle है and these are easy to understand. डायग्राम अगर आप देखते हैं तो ये आपको आसानी से बात समझ में आ जाती है. ओके, अब ये जो डक्ट है ये जाकर के ज़ाहिर माउथ में खुलनी है, ओरल कैविटी में खुलनी है एंड एग्जैक्टली ये किधर खुलती है, ऑपोजिट द क्राउन ऑफ द अपर सेकंड मोलार. सो लेट अस लुक एट अ डायग्राम. सो दिस इज द ओपन ओरल कैविटी, दिस इज द टंग, और ये ज़बान ऊपर की तरफ उठाई हुई है क्योंकि आपको फ्रेन्युलम दिख रहा है. अब यहाँ इस डायग्राम में दे आर एक्चुअली शोइंग ओपनिंग ऑफ three major salivary glands. Opening of the parotid duct is second molar, upper second molar. This is the opening of the parotid duct. Then you see there are sublingual folds on each side of the frenulum on the inferior surface of the tongue. यहाँ पे there are 8 to 10 openings for submandibular gland. Okay, so these are the submandibular ducts. And then this is an important diagram for you. Okay, इसमें बड़ा clearly आपको parotid duct की opening और sublingual gland की opening दिखाई जा रही है, नजर आ रही है. Okay, right. अब कुछ क्लिनिकल स्टफ देख लेते हैं. पैरोटिड एब्सेस इज अ कॉमन फिनोमिना, अक्सर होता है, उसको ड्रेन किया जाता है ऑब्वियसली बाय इंसिजन एंड ड्रेनेज. और एक डायग्राम थी जिसमें इंसिजन लाइन भी दिखाई, दिस इज द इंसिजन लाइन. सो दिस इज हाउ यू शुड इंसाइज हॉरिजॉन्टली टू अवॉइड डैमेज ऑफ द नर्व्स व्हिच आर अंडरलाइंग एंड दे आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. Now parotid abscess is best drained by the horizontal lines या हिल्टन मेथड इसको कहते हैं. अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया horizontal lines. Okay, parotidectomy is removal of the parotid gland. ठीक हो गया. After the operation at times there may be aberrant regeneration of secretomotor fibers in the auriculotemporal nerve. ये वो नर्व है जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके आ रही थी. Sometimes they overgrow और उसकी वजह से they are hyperactive, so there is increased sweating in this region and increased hyperemia, so hot feeling in the area जहाँ पे auriculotemporal nerve supply करेगी. This is actually called Frey's syndrome. So Frey's syndrome एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. रेयर डिसऑर्डर है लेकिन चूंकि रेयर है और मुश्किल है तो वो पूछते हैं इसको. ठीक है. अच्छा, ड्यूरिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सब्सटेंसेज विच आर पासिंग थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड. आपको पता होना चाहिए कि फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस हैं और कुछ ब्लड वेसल्स हैं. ओके, नाउ दे आर ऑल्सो टेलिंग यू दैट देयर आर पैरोटिड ट्यूमर्स, दे आर कॉमन पैथोलॉजी. वी विल डिस्कस दिस इन पैथोलॉजी सेक्शन. Also parotid calculi. So parotid is also a very common, I mean people think it's not common, but let me tell you this is pretty common to have stones in the parotid gland. Like you have stones in your gallbladder, like you have stones in your renal system. Stones in parotid gland are also not uncommon.
common. Okay, parotid gland में भी, or it can also go into the duct and block the duct. Okay, these can be located by injecting a radio opaque dye through its opening in the vestibule of the mouth, and this procedure is called a cyelogram. Now करते ये हैं बेसिकली, ये जो ओपनिंग माउथ में मैंने आपको अभी दिखाई थी अपर सेकंड मोलर में, यहाँ से इंजेक्ट कर देते हैं एक डाई और फिर उसका स्कैन करते हैं. तो इस पूरे प्रोसीजर को पीछे ज़ाहिर है ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट में जाएगा, ग्लैंड तक जाएगा डाई, और हम जब इसका स्कैन रेडियोग्राफिक इमेज ले लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू शो अस कि कहाँ पे ब्लॉकेज है. दिस इज नोन एज सायलोग्राम. Just like ultrasonogram, this is a cyelogram. Okay, हिस्टोलॉजी इन्होंने भी नहीं एक्सप्लेन की, मैं वैसे भी नहीं कराता क्योंकि हिस्टोलॉजी इंदरबीर सिंह से हम अलग प्लेलिस्ट है हमारी, और डेवलपमेंट भी मैं नहीं कराता, इन्होंने भी नहीं बताई क्योंकि डेवलपमेंट की भी हमारी एम्ब्रियोलॉजी हम कर रहे हैं, लैंगमैन से अलग प्लेलिस्ट है. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एनाटमी ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. क्या बॉर्डर्स हैं, क्या सर्फेसिस हैं, कौन से सब्सटेंसेज इसमें से गुजरते हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक क्लिनिको एनाटमिकल प्रॉब्लम है, कर ली है, चलो कर लेते हैं. अ यंग मैन कंप्लेनिंग ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट noted a swelling and felt pain on both sides of his face. So it seems like he is developing inflammation of parotid gland. Within a few days, he noted swelling below his jaw and below his chin. ये तो submandibular gland भी जा रहा है भाई. He suddenly started looking very healthy by facial appearance. तो मुंह पूरा सूज गया है, very healthy. The pain increased while chewing or drinking lemon juice. अब ये बड़ी मज़े की बात आ गई, जब वो फूड को च्यू कर रहा है या लेमन जूस ड्रिंक कर रहा है, तो अच्छा लेमन जूस ड्रिंक कर रहा है, इट इज़ अ हिंट टूवर्ड्स वेरी लो pH, विच मीन्स थिंग्स आर गेटिंग वर्स ऑन drinking acidic drinks. Okay, lemon juice is equal to acidic drink. The physician noted enlargement of all three salivary glands on both the sides. The question is, where do the ducts of salivary glands open? तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी सेकंड अपर मोलर पे ओपन होती है, सब मैंडिबुलर की एट द पैपिला ऑफ द सबलिंगुअल फोल्ड, और सबलिंगुअल बाय 10 to 12 ducts on the sublingual fold. तो ये दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस डायग्राम एज वेल. ओके, दूसरा सवाल है, व्हाई डिड द पेन इंक्रीज वाइल च्यूइंग? उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड है इट इज़ इन रिलेशनशिप विद मसेटर मसल विद मैंडिबल, और जब च्यूइंग होगी तो मैंडिबल भी मूव करेगा, मसेटर भी मूव करेगा और पेन इंक्रीज होगा. नाउ व्हाई इज द पेन इंक्रीजिंग ऑन लेमन जूस? Because it is acidic. An acidic environment increases the sensation of pain and inflammation. That's why it is worsened. The pain is worsened while having lemon juice. Simple stuff. Okay, so that's all about the structure of and anatomy of parotid gland. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.